رات کے 12 بجے کا وقت تھا. پورے ہاسٹل میں سناٹا چھایا ہوا تھا. ارشمان کہنے لگا خرم تو ذرا باہر کا راؤنڈ مار کے آ, دیکھ راستہ صاف ہے یا نہیں. خرم جلدی سے باہر چلا گیا. میرا دل پتہ نہیں کیوں ڈر رہا تھا. آتے ہی کہنے لگا سب صاف ہے. آج تو چوکی دار بھی اپنے چھوٹے سے کوارٹر میں گھسا پڑا ہے. اتنی سردی جو ہے, واہ, اوپر سے مری کا موسم, بڑا مزہ آنے والا ہے. چلو جلدی سے اپنی اپنی جیکٹس پہنو. ارشمان کہنے لگا یہ تو کیا اوپر چڑھا ہوا ہے, نیچے آ. تجھے بتائیں ہم کہ مزہ کیا ہوتا ہے, زندگی انجوائے کیسے کرتے ہیں. کچھ مجھے بھی تجسس تو ہونے لگا تھا کہ ایسا بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں. میں نیچے اتر آئی, اپنی جیکٹ پہنی اور ان لوگوں کے ساتھ ہاسٹل کے کمرے سے باہر نکل آئی. بڑے دبے پاؤں ہم لوگ ہاسٹل کی پچھلی جانب آئے جہاں بالکل سناٹا تھا. اتنا اندھیرا تھا کہ وہاں لگے کیمروں میں بھی شاید ہم نظر نہیں آ سکتے تھے. سب نے کالے رنگ کی جیکٹس پہن رکھی تھی. بڑی خاموشی میں سب سے پہلے ارشمان نے خرم سے کہا اور وہ گھوڑے کی طرح جھک گیا. وہ اس کے اوپر چڑھا اور دیوار پھلانگ کے اگلی طرف چلا گیا. فہد کہنے لگا چل داؤد تیری باری. میں ڈرتے ڈرتے خرم کی کمر پہ چڑھی. فہد کہنے لگا او خرم تھوڑا اونچا ہو, اس کی تو ویسی ہی ہائٹ کم ہے. وہ کہنے لگا وزن بھی کم ہے, لگ ہی نہیں رہا کہ میرے اوپر کوئی مرد کھڑا ہے. وہ بڑے مزے سے تھوڑا سا اونچا ہو گیا. میں بہت مشکل سے دیوار پہ بیٹھی. دوسری جانب ارشمان تھا. کہنے لگا نیچے کود جاؤ. میں نے نفی میں سر ہلایا. کہنے لگا کیا یار بدھو قسم کے ہو تم, ابے یار نیچے کودو. میں نے کہا تم بس اپنا ہاتھ پکڑاؤ. اس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کیے. میں نے اس کے ہاتھ زور سے پکڑے اور پھر میں نیچے اتری. باقی کے سب لڑکے بھی دیوار پھلانگ کے نیچے اتر چکے تھے. سب اپنی اپنی پینٹس جھاڑ رہے تھے, ہاتھ جھاڑ رہے تھے کیونکہ کودنے سے مٹی لگ چکی تھی. ارشمان مجھے دیکھے جا رہا تھا, پھر جلدی سے خود کو جھٹکنے لگا, نفی میں سر ہلانے لگا. ہم لوگ تقریباً 1 کلومیٹر پیدل چلے. پھر مین مارکیٹ شروع ہو گئی. وہاں سے برگر کھائے, کولڈ ڈرنکس پی, آئس کریم کھائی. پہلی بار مجھے بھی مزہ آیا. جب ہم بیٹھے کیفیٹیریا میں آئس کریم کھا رہے تھے تو میں نے دیکھا سارا اور میری 2-3 کلاس فیلوز وہاں آ کے بیٹھی. شاید وہ ہاسٹل سے آئی تھی. انہیں دیکھ کے تو جیسے مجھ سے رہا ہی نہیں گیا. میں نے اپنا آئس کریم کا کپ وہیں چھوڑا. وہ لوگ اپنے لیے آئس کریم آرڈر کر رہی تھیں جب میں تیز قدموں سے چلتی ہوئی ان کے پاس آئی. سارا, میں نے سارا کو پکارا لیکن اسی بھاری آواز میں. سارا نے میری طرف دیکھا تو اٹھ کے کھڑی ہو گئی. میری تو آنکھیں بھر آئی. پورے 10 دن بعد میں اپنی دوستوں کو دیکھ رہی تھی. بے ساختہ میں سارا کے گلے لگ گئی. مجھے دیکھ کے وہ بھی میرے گلے لگ چکی تھی. پھر شیزا, فری باری باری میرے گلے لگنے لگی. تبھی شاید سارا کی نظر پیچھے پڑی. اس نے میرے پاؤں پہ پاؤں مارا تو مجھے ہوش آیا کہ میں لڑکی نہیں لڑکا ہوں. وہاں کیفیٹیریا میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب منہ کھولے ہم سب کو دیکھ رہے تھے کہ ایک لڑکا کھلے عام لڑکیوں سے جپھیاں ڈال رہا ہے, پپیاں لے رہا ہے. میری باقی کی دوستیں بھی میرے اس پلان سے واقف تھیں, لیکن مجھے دیکھ کے شاید وہ بھی بھول گئی تھی کہ میں یہاں پہ ایک لڑکے کی حیثیت سے آئی ہوں. جب میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہ پانچوں منہ کھول کے مجھے دیکھ رہے تھے. وہ کیا, کیفیٹیریا میں سب لوگ بنا آنکھیں جھپکائے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. سارا, شیزا اور فری سب کی نظروں کو دیکھ کے بری طرح سے پزل ہوئی. سارا مجھے غصے سے دیکھنے لگی. آہستہ سے کہنے لگی یہ کیا حرکت تھی تمہاری. میں نے کہا میں بھول گئی تھی کہ میں داؤد عثمان ہوں. کہنے لگی داؤد کی بچی, پتہ نہیں یہاں بیٹھے لوگ ہمیں کال کرنا سمجھ رہے ہوں. میں نے کہا آئی ایم سوری. بہرحال میں ڈھیٹوں کی طرح انہی کی ٹیبل پہ بیٹھ گئی. آئس کریم بھی میں نے انہی کے ساتھ کھائی. پیچھے ٹیبل پہ بیٹھے وہ پانچوں لڑکے اپنی آئس کریم تک کھانا بھول گئے تھے. آئس کریم کھانے کے بعد سارا اور میری دوستیں جا چکی تھیں. میں جب ان لوگوں کے پاس آئی تو سب کے سب مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے. فہد کہنے لگا ابے چکنے, تو تو واقعی ماسٹر نکلا. اتنی تو کبھی ہماری جرت نہیں ہوئی کہ لڑکی کے اتنے قریب ہو جائے. انور کہنے لگا ابے او بتا نا, ایسا بھی کیا کیا ہے تو نے ان لڑکیوں کے ساتھ, ایک کے بجائے 4 لڑکیاں تجھے گلے لگا رہی تھی, تیرا منہ چوم رہی تھی, اور وہ بھی پبلک پلیس پہ. ہائے مت پوچھ میرے دل پہ کیا کیا گزر رہی تھی. میں نظریں چرانے لگی. ارشمان کہنے لگا اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ چاروں لڑکیوں میں کتنا اتفاق تھا, کوئی بھی ایک دوسرے سے جیلس نہیں ہو رہی تھی.
यहाँ अगर एक लड़की के साथ डेट पे चले जाओ और इत्तफाकन वहां दूसरी गर्लफ्रेंड आ जाए तो दंगा फसाद शुरू हो जाता है। वाह भाई वाह, क्या किस्मत पाई है दाऊद ने। रोहेल कहने लगा, अबे यार दाऊद बताना यार, कैसे पटाता है तू लड़कियों को। एक साथ चार चार तुझे गले लगा रही थी, कसम से मेरे सीने पे सांप लौट रहे थे उस वक्त। और यकीन कर, जब उन लोगों ने तुझे चूमा, आइसक्रीम जैसी ठंडी चीज भी मेरे अंदर आग लगा गई थी। और हैरत की बात यह है कि तूने भी उनको चूमा, और वो भी पब्लिक प्लेस पे। खुर्रम कहने लगा, मुझे तो लग रहा था जैसे मैं कोई हॉलीवुड का फिल्म सीन देख रहा हूँ। इतना खुला रोमांस मैंने मरी में आज तक होते हुए नहीं देखा। मुझे नहीं पता था मेरी जरा सी गलती मुझे शर्मिंदा करके रख देगी। मेरे पास ही फहद बैठा हुआ था, मुझे कंधा मारा तो मैं बुरी तरह से चौंकी। मैंने कहा, ओए पीछे हट के बात किया कर। कहने लगा, अच्छा मैं लड़का होके पीछे हट के बात किया करूं, और उन लड़कियों के साथ जप्पियां पप्पियां करते हुए तुझे कुछ नहीं हुआ। वाह उस्ताद वाह, यहाँ हमसे एक नहीं फंसी, तूने चार चार फंसाई हुई है, और वो भी ऐसी लड़कियां, एक से बढ़ के एक खूबसूरत, और चारों में हद से ज्यादा इत्तेफाक कि एक ही बॉयफ्रेंड के साथ एक ही जगह पे रोमांस कर रही हैं। हाउ इंटरेस्टिंग। अनवर कहने लगा, यार मुझे तो तू बस अपनी शागिर्दगी में ले ले, बहुत हो गया। फात कहने लगा, ओए कमरे से बाहर निकल चुका है ना तू, अपनी औकात में रहे। सबसे पहले ये मुझे ट्रिक बताएगा, क्योंकि हम पड़ोसी हैं। नीचे का बेड मेरा है, ऊपर का इसका है। खुरम कहने लगा, जी नहीं, पड़ोसी हम लोग हैं, आमने सामने के बेड हैं हमारे। अरिशमान कहने लगा, लीडर मैं हूँ, शुरुआत मुझसे होगी। देख दाऊद, लीडर होने के नाते मेरी कम से कम 6-7 गर्लफ्रेंड्स होनी चाहिए। सबसे पहले तू मुझे ट्रिक बताएगा। बाकी सब लड़के अरिशमान के पीछे पड़ गए। ओए भाभी को फोन कर देंगे, तेरा निकाह हो चुका है, तू तो शराफत का मुजाहिरा दिखा तो बेहतर है। ये ना हो कि तू डेट पे जाए, पीछे से भाभी वहां पहुंच जाए। अरिशमान कहने लगा, यार ये हर जगह ना तुम लोग मेरी मनकूहा को मत लेके आया करो, सारा मजा किरकिरा होके रह जाता है। मीठी मीठी आइसक्रीम मेरे गले में कड़वाहट की तरह से गुजरती है, पता नहीं क्यों मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा, इतनी नफरत है तुम्हें अपनी बीवी से? कहने लगा, बहुत ज्यादा। मेरा बस चले ना, 2 मिनट में फारिग कर दूं उसे। वो चुटकी बजा के बोला था। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया। फहद कहने लगा, यार दाऊद तू इसको दफा कर, इसका तो रोज का है, रुखसती इसकी उसी के साथ होनी है, ये अपने माँ बाप के सामने बोल भी नहीं सकता। जिस तरह इसने निकाह किया है, रुखसती भी करेगा और बच्चे भी पैदा करेगा। तू जाने दे इसे, तू मुझे बता यार, वो जो मैरून स्वेटर पहने हुए थी, अगर तू उसके मामले में ज्यादा सीरियस नहीं है तो यार मेरी सेटिंग करवा दे। फहद ने सारा के बारे में कहा था। मैंने कहा, नहीं नहीं मैं नहीं करवाऊंगा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। फहद कहने लगा, ओए होए यार क्या लड़की फंसाई है तूने, दूध जैसी गोरी चिट्टी। क्या आंखें थी उसकी, मोटी मोटी, और उस पे उसका काजल, हाय दिल डूबता महसूस हो रहा है। रोहेल कहने लगा, यार वो जो ब्लू कलर का केप शॉल लिए हुए थी, उसका नाम क्या था यार? कम तो वो भी नहीं थी। मैंने कहा, वो शिजा। कहने लगा, हाय शिजा, शिजा नाम है उसका। पता है ये नाम मेरे लिए हमेशा बेस्ट रहा है। पामिस्ट ने भी ये कहा था कि जिससे तेरी शादी होगी उसका नाम शीन और जा से शुरू होगा। खुरम कहने लगा, यार वो जो बाकी की 2 बची थी वही बता दे उनके नाम क्या है। मुझे उन दोनों में से कोई भी चलेगी। मैंने कहा, मैंने लड़कियों का बाजार नहीं लगा रखा है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और वैसे भी बहुत देर हो गई है, उठो हमें वापस जाना है। अरिशमान कहने लगा, हाँ देर तो बहुत हो गई है वाकई। फहद कहने लगा, देख आज तो वाकई काफी देर हो गई है, लेकिन कल कल से तू मुझे अपनी शागिर्दगी में लेगा। मैंने कहा, देखी जाएगी। मैं तो बुरी तरह से पिछता रही थी, क्या जरूरत थी जज्बात में आके ये कदम उठाने की। जब हम लोग वापस कॉलेज की पिछली जानिब की दीवार तक पहुंचे जहां से हम उतरे थे, और खुर्रम झुक के घोड़ा बनने लगा, तो अरिशमान कहने लगा, नहीं मैं बनता हूँ, तुम सब लोग दीवार कूदो। आखिर में दाऊद कूदेगा, क्योंकि इसका अक्सर हाथ पकड़ के इसे नीचे उतरना पड़ता है। चारों लड़के दीवार कूद चुके थे, बस मैं और अरिशमान रह गए थे। इससे पहले कि मैं अरिशमान के ऊपर पाँव रखती, वो फौरन से खड़ा हो गया। मैंने कहा, तुम खड़े क्यों हो गए? कहने लगा, मैं बताता हूँ तुम्हें। पता नहीं कैसे, लेकिन वो बिना किसी सहारे के अपने जॉगर्स के साथ दीवार पे पाँव जमाता हुआ दीवार चढ़ गया। मैं अकेली रह गई। मैंने कहा, अरिशमान मेरा हाथ पकड़ो, मैं कैसे चढ़ूंगा ऊपर? कहने लगा, बाय बाय,
टाटा। ये सुन के मेरे होश उड़े। मैंने कहा क्या 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 मतलब? कहने लगा कहा था ना तुमसे, हमारे कमरे में मत आना, हमसे पंगा मत लेना। तुम्हें क्या लगा तुम हम सबको परेशान करोगे और हम तुम्हें इतनी आसानी से अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे? आयुष्मान के ग्रुप का एक असूल ये है कि ना कोई तोता आएगा और ना कोई हमारे ग्रुप से बाहर जाएगा। तेरे साथ ये सारा खेल खेलने के लिए हम पहले ही प्लान कर चुके थे। तूने मुझसे पंगा लिया तो लिया कैसे? उसकी बातों ने मेरे होश उड़ाए थे। दीवार की दूसरी जानिब से फाहद और रोहेल की आवाज आने लगी। अबे यार अरिशमान क्या कर रहा है यार? देख ये ठीक नहीं है, दाऊद को ऊपर चढ़ा, ये बहुत गलत हो जाएगा यार। अरिशमान दूसरी तरफ उतर चुका था। मेरे आंसू बहने लगे। वो उन सबको कहने लगा अपनी बकवास बंद करो, हम लोगों में यही तय हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड्स देख के तुम लोगों के मुंह में जो पानी आ रहा है ना, सब समझता हूं मैं कि तुम लोगों को दाऊद से हमदर्दी क्यों हो रही है। याद है ना हमने क्या कहा था कि हमारे ग्रुप में कोई भी किसी भी लड़की से मोहब्बत नहीं करेगा। हम किसी भी लड़की को फिलहाल 10 साल तक अपनी जिंदगी में नहीं लाएंगे। मैंने अपनी मनकूहा के होते हुए उसे अपने दिल में जगह नहीं दी। तुम लोग कैसे गर्लफ्रेंड बनाओगे? हमने यही तय किया था ना कि दाऊद को मजा चखाएंगे। मैंने कहा अरिशमान खुदा के लिए मुझे ऊपर आने दो। मैं रोने लगी। कहने लगा जिस प्रिंसिपल के तुम चमचे बने हुए थे ना, देखो आज वो तुम्हें क्या पनिश करता है। खुदा हाफिज। वो मुझे बाय बाय करता हुआ दूसरी जानिब कूद चुका था। अरिशमान! मैं फूट फूट के रोने लगी। बाहर की तरफ बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा था। मैंने सोचा कि रोने से तो कुछ नहीं होगा, मुझे खुद ही हिम्मत पकड़नी पड़ेगी। मैं दाएं बाएं देखने लगी। दूर दूर कुत्ते के भौंकने की आवाजों से मेरा दिल लरजने लगा। मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था जिस पे चढ़ के मैं दीवार फलांगती। मैंने देखा काफी दूर सीमेंट के ब्लॉक्स पड़े हुए थे। मरता क्या ना करता वाली मिसाल थी। मैं वहां गई। ब्लॉक्स उठा उठा के मैंने दीवार के पास रखे। फिर उस पे चढ़ के बड़ी मुश्किल से मैं दीवार की मुंडेर पे बैठ गई। मगर जैसे ही मैं नीचे कूदने लगी, मेरे होश उड़ गए। चौकीदार माथे पे बल डाले, हाथ में डंडा लिए, मुंह में सीटी डाले, मुझे घूर रहा था। साथ ही उसने सीटी बजा दी। मैं जल्दी से नीचे कूदी और उसके सामने हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए मुझे जाने दो। लेकिन सीटी की आवाज पे बाकी के गार्ड्स भी जमा हो गए। रात के 4 बजे का वक्त था। सारे स्टूडेंट्स की खिड़कियों के आगे से पर्दे हटे, कमरों की लाइटें जली और मेरा तमाशा लग गया। सारे प्रोफेसर्स, यहाँ तक के प्रिंसिपल भी नाइट सूट में बाहर आ चुका था। चौकीदार कहने लगा कि ये लड़का यहाँ से कूद के बाहर गया था। प्रिंसिपल तो मुझे देख के हैरान हुआ। कहने लगा दाऊद तुम? बहरहाल मैंने कहा सर वो मैं मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ। उसी वक्त काफी स्टूडेंट्स भी अपने कमरों से निकल के बाहर आ गए। यहाँ तक कि वो पांचों कमीने अपने अपने नाइट सूट में बाहर आए और यूं आंखें मसल रहे थे जैसे अभी सो के आ रहे हों। अरिशमान कहने लगा क्या हुआ सर? और दाऊद तुम यहाँ यूं? वो यूं अनजान बना जैसे उस कमीने को कुछ पता ही नहीं है। मैंने प्रिंसिपल से कहा सर ये मुझे लेके गया था बाहर। मैं अभी भी रो रही थी। प्रिंसिपल मुझे गुस्से से घूरे जा रहे थे। आयुष्मान कहने लगा क्या क्या हो गया? दिमाग ठीक है? हमारी तो तुमसे वैसे ही नहीं बनती। एक तो हमारे कमरे में आके तुमने हमारे दोस्त को निकलवा दिया, हम क्यों तुम्हारे साथ जाने लगे? ये अच्छी लगाई है भाई, जिसका दिल चाहता है हम पे इल्जाम लगा देता है। प्रिंसिपल ने कहा मैं कैमरे में फुटेज देखूंगा। मुझे पूरा यकीन था कि ये पांचों कमीने कैमरे में नजर आ जाएंगे। लेकिन इनको शायद पता था कि जिस दीवार से वो लोग फलांग के दूसरी जानिब कूदे थे वहां कैमरा नहीं लगा हुआ था। अलबत्ता मैं जहां से अंदर आई थी वहां कैमरा लगा हुआ था। क्योंकि ब्लॉक उठाने के चक्कर में मैं मतलूबा जगह भूल गई थी, तो सिर्फ मैं सजा की हकदार हुई। प्रिंसिपल कहने लगे कि जब तक सुबह का सूरज नहीं निकल आता तुम पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाओगे, और वो भी भागते हुए। और अगर तुम रुके तो तुम्हारी सजा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आयुष्मान जमाइयां लेता हुआ, मुस्कुराता हुआ, अंगड़ाइयां लेता हुआ मुझे देखकर वहां से चला गया। अलबत्ता उसके बाकी के दोस्त नजरें चुरा रहे थे।
میں نے ہاتھ اوپر کیے اور گراؤنڈ کے چکر لگانے لگی. سردی کے مارے میری جان نکل رہی تھی. لگ رہا تھا میرے ہاتھ شل ہو جائیں گے. ایک تو سورج تھا کہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا. ویسے بھی یہ سردیوں کی راتیں تھیں اور سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں. میں جانتی تھی کہ 6 بجے یا 6:15 اذان ہوگی اور 7 بجے جا کے کہیں سورج نکلے گا. 3 گھنٹے مسلسل میں گراؤنڈ کے چکر لگاتی رہی. ساتھ ساتھ روتی رہی کیونکہ مجھے اس قسم کے کاموں کی عادت نہیں تھی. مجھے کبھی ایسی پنش زندگی میں نہیں ملی تھی. اور پھر میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی. لاڈ سے نخروں سے پلی تھی. جیسے ہی سورج نکلا تو وہاں کے گارڈز نے کہا کہ اب تم جا سکتے ہو. مجھے لگ رہا تھا کہ میں شاید گر پڑوں گی. جیسے میں نے اپنے ہاتھ نیچے کیے تو شدت سے میرے کندھوں میں تکلیف ہوئی. میرا جی چاہا کہ ارشمان کا حشر بگاڑ کے رکھ دوں. بھاڑ میں گیا میرا اور اس کا رشتہ. اگر طلاق کا حق مجھے ہوتا تو میں اب تک اسے طلاق دے چکی ہوتی. جیسے ہی میں کمرے میں گئی سب کے سب اٹھ چکے تھے کیونکہ تیار ہو کے ناشتہ کر کے ہمیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں جانا تھا. کلاسز شروع ہونے والی تھیں. میں غصے سے ارشمان کے پاس آئی. وہ کندھے پہ تولیہ رکھے واش روم جانے کی تیاری کر رہا تھا. مجھے دیکھ کے باقی کے بھی سب لڑکے کھڑے ہو گئے. میں نے ارشمان کا گریبان پکڑ کے بری طرح سے جھنجھوڑ دیا. میں نے کہا ہوتے کون ہو تم میرے ساتھ اس طرح کا گھٹیا مذاق کرنے والے؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. وہ ذرا سا مسکرایا. ابھی بچے ہو تم میرے سامنے. مجھ سے تو ذرا سوچ کے پنگا لینا اور آئندہ میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش مت کرنا. میرے دونوں ہاتھ پکڑ کے اس نے اپنے گریبان سے مجھے پیچھے جھٹکا. میں نے کہا یاد رکھنا جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا نا تم سب لوگ یاد رکھو گے. ارشمان کہنے لگا جا شاباش مننے جو تو نے کرنا ہے کر لے لیکن یاد رکھنا منہ توڑ جواب تمہیں پھر بھی ویسا ہی ملے گا. وہ واش روم میں جا چکا تھا. میں ابھی بھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی. تبھی روہیل میرے پاس آیا. داؤد یار. بڑے دھیمے لہجے میں اس نے کہا. میں نے کہا خبردار دفع ہو جاؤ یہاں سے. تم بھی سب کے سب کمینے ہو الو کے پٹھے ہو. شاید زندگی میں نے ایسی گالی نہیں دی تھی جو غصے کے مارے میرے منہ سے نکل گئی تھی. خبردار جو مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تو. فہد کہنے لگا ٹھیک ہے تیری مرضی ہے بات نہیں کرنی مت کر. لیکن باخدا ہمیں نہیں پتا تھا کہ ارشمان اس بات کو لے کے تم سے بدلا لے گا. ٹھیک ہے ہمارے بیچ میں یہ سب کچھ طے ہوا تھا لیکن قسم سے ہم بھول گئے تھے. ہمارے دل میں تمہارے لیے ایسا کچھ نہیں تھا اور ہم نے اسے بہت کہا. میں نے کہا اس ارشمان کو تو میں چھوڑوں گا نہیں. سب لوگ تیار ہو کے ڈپارٹمنٹ میں جا چکے تھے. میں نے بھی نہا کے کپڑے تبدیل کیے لیکن لگ رہا تھا کہ جیسے پورا وجود ٹوٹ رہا ہے. بخار سا محسوس ہو رہا تھا. لیکن کچھ ہی دنوں میں پیپرز ہونے والے تھے اس لیے میں چھٹی نہیں کر سکتی تھی. میں کلاس میں لیٹ پہنچی تھی. سر ابدال یوں تو کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے لیکن مجھے اندر بلا لیا. کہنے لگے اندر آ جاؤ داؤد. میں اندر آئی. ارشمان فوراً سے اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا. سر یہ اندر کیوں آیا ہے؟ سر ابدال کہنے لگے تم سے مطلب؟ وہ کہنے لگا جی ہاں کیونکہ کچھ دن پہلے جب ہم لیٹ ہوئے تھے تو آپ نے ہمیں تو اندر آنے نہیں دیا تھا. میرے خیال سے کیڈٹ کالج کے اصول میں ایک یہ بھی ہے کہ سب اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک برابر سلوک کیا جائے گا. جب ہم اندر نہیں آئے تھے ہمیں آپ نے باہر کھڑا رکھا تھا تو داؤد بھی اندر نہیں آئے گا. سر ابدال کہنے لگے تم میرے استاد بننے کی کوشش مت کرو. میں نے کئی بار تم لوگوں کو چانس دیا ہے اور آج داؤد پہلی بار لیٹ آیا ہے. ارشمان دوبارہ غصے سے اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا. میں اسے غصے اور نفرت سے دیکھ رہی تھی. میں اندر آ گئی. اس سے پہلے کہ میں اپنی سیٹ پہ بیٹھتی سر ابدال کہنے لگے ادھر آؤ. میں ان کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی. میں نے کہا یس سر. کہنے لگے یہ کیا حرکت کی تھی تم نے رات کو؟ نہایت افسوس ہوا مجھے. تم میرے فیوریٹ اسٹوڈنٹس میں سے تھے. داؤد شیم آن یو. جاؤ جا کے بیٹھو. میری آنکھیں جل رہی تھی. میں پورے 24 گھنٹے سے جاگ رہی تھی. میں جا کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی. پہلا پیریڈ تو جیسے تیسے میں نے گزار لیا لیکن اگلے لیکچر کے دوران میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا. نیند سے میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں. جیسی دوسری کلاس ختم ہوئی میں چکر کھا کے وہیں گر گئی. جب مجھے ہوش آیا تو میں وہیں کیڈٹ کالج کے کلینک میں تھی.
वहाँ पे फोल्डिंग बेड पे लेटी हुई थी। वहाँ मौजूद डॉक्टर कहने लगा कि इसे बहुत तेज बुखार है। मैंने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली तो देखा कि सर अब्दाल खड़े हुए थे, साथ में अरिशमान भी था, अनवर भी था। मुझे होश में देख के सर अब्दाल कहने लगे, दाऊद कैसे हो तुम? मैंने कहा हाँ मैम, बेहतर हूँ। कहने लगे अच्छा, 2 दिन तुम आराम करो। मैंने कहा नहीं सर, पेपर्स हैं, मुझे तैयारी करनी है, मैं बस आज मेडिसिन खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। सर कहने लगे नहीं नहीं, तुम 1 दिन आराम कर लो, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। मेडिसिन मुझे उसी क्लिनिक से मिली। मैं उठ के खड़ी होने लगी तो अरिशमान मेरे करीब आ गया, क्योंकि सर अब्दाल ने उससे ही कहा था कि इसे कमरे तक ले जाओ। मैंने उसका हाथ पीछे झटक दिया। मैंने कहा सर मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं उठ के खड़ी हो गई, लेकिन सर अभी भी चकरा रहा था। अनवर मेरे पास आ गया, कहने लगा चलो मैं छोड़ देता हूँ। मैंने कहा हाथ भी मत लगाना मुझे, चला जाऊंगा मैं खुद। चकराते हुए सर को मैंने पकड़ रखा था, दूसरे हाथ में मैंने मेडिसिन पकड़ी। मैं खुद ही हॉस्टल के कमरे तक गई। अंदर गई तो रोहेल और फहद भी मौजूद थे। रोहेल कहने लगा तुम कहाँ बेड पे चढ़ सकोगे, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तुम यहाँ मेरे बेड पे लेट जाओ। मैंने कहा नहीं, एहसान चाहिए तुम लोगों का। मैं बुरी तरह से खांस रही थी, सबके सब कुछ कुछ शर्मिंदा लग रहे थे, लेकिन वो संगदिल, उसकी अक्कड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पता नहीं खुद को समझता क्या था। मैंने अपनी मेडिसिन खाई और ऊपर अपने बेड पे जाके लेट गई। जब शाम को मेरी आंख खुली तो तबीयत कुछ बेहतर थी, लेकिन खाने का टाइम गुजर चुका था। फहद कहने लगा मैं चाय बना दूं तुम्हें? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगा यार सॉरी। शक्ल से लग रहा था कि वाकई शर्मिंदा है। अरिशमान मुझे देखकर कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद आया तो हाथ में कप था, ऊपर मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा ये चाय पी लो। फिर फहद से कहने लगा मेरे बैग में से बिस्किट निकाल के दो इसको, खाली पेट मेडिसिन खाना नुकसानदेह है। मैंने कहा तुम्हारे हाथ से ना मैं सिर्फ जहर पीना पसंद करूंगा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी चाय। कहने लगा आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम इतने नाजुक होगे। मैंने कहा यहाँ से दफा हो जाओ, अपनी शक्ल गुम कर लो यहाँ से। रोहेल ने चाय का कप अरिशमान से ले लिया। कहने लगा यार तू जा, तेरी शक्ल ही ऐसी है। फहद तब तक बिस्किट निकाल चुका था। रोहेल ने चाय का कप ऊपर रखा। कहने लगा चल मेरे हाथ से तो ले लेगा ना, छोड़ उसे, ये है ही मनहूस। फिर फहद से बिस्किट लेकर मुझे दिया। भूख तो मुझे लग रही थी, फिर मैंने दवाई भी खानी थी। मैंने चाय के साथ बिस्किट लगा के खा लिए, उसके बाद अपनी मेडिसिन भी खाई। काफी हद तक मेरा बुखार उतर चुका था। अरिशमान उसके बाद कमरे में नहीं आया। बाकी के सब लड़कों ने मुझसे माफी मांगी, यहाँ तक कि अनवर ने भी। मैं अरिशमान से बात ही नहीं कर रही थी। अगले रोज मैं जब क्लास में गई तो सर अब्दाल मुझसे मेरी खैरियत पूछने लगे। अरिशमान चुप चुप सा था, चोर नजरों से मुझे देख रहा था। अलबत्ता बाकी लड़कों ने मेरा बड़ा ख्याल रखा। वो खाना तक मुझे कमरे में ला के देते थे। मेरे पेपर्स भी बहुत अच्छे हुए और पहली बार मैंने अपने साथ साथ फहद और रोहेल की भी मदद की, क्योंकि उनकी सीट मेरी सीट के करीब थी। अरिशमान मुझसे कई बार बात करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन उसे देखते ही मैं अपना रुख बदल लेती थी। कहने लगा लड़कियों की तरह नखरे दिखाते हो तुम, बाकी सबसे भी तो बात कर रहे हो, तुम मुझे भी माफ कर दो यार, इतना भी बड़ा कोई कसूर तो नहीं है मेरा, प्लान हम सब ने मिलके बनाया था। मैंने कहा मुझे तुमसे नफरत है, तुम कोशिश किया करो मेरे सामने मत आया करो। शायद वो मुझसे माफी मांग के कुछ चिढ़ सा गया था। कहने लगा भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। एक बार मैं सो रही थी जब मुझे ऐसे लगा जैसे कमरे का दरवाजा खुल के धीरे से बंद हुआ है। मैं नींद की वैसे भी कच्ची थी। मैंने आंखें खोल के देखा तो अनवर हमारे कमरे में आकर अरिशमान को जगाने की कोशिश कर रहा था। अरे अरे अरिशमान उठ ना, बड़ी मुश्किल से आया हूँ। जहां मैं सोती थी सामने वाले नीचे वाले बेड पे अरिशमान सोता था। मैं बड़े आराम से देख सकती थी। अरिशमान ने आंखें खोली। कहने लगा क्या है? अनवर कहने लगा यार तुझे पता है ना वो धीमे लहजे में बोला। अरिशमान कहने लगा नहीं नहीं, देख अगर पकड़े गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अनवर कहने लगा नहीं पकड़े जाते, आज तक कभी पकड़े गए हैं हम लोग? नहीं पकड़े गए ना। वो कहने लगा एक तो कुछ ही देर में तुम्हारी टांगें कांपने लग जाती हैं। नहीं यार मैं नहीं ये सब कर सकता।
انور کہنے لگا نہیں نہیں، اس بار میں بالکل فل چارج ہو کے آیا ہوں، اس بار میری ٹانگیں نہیں کانپیں گی، میں نے اپنے دل کو بہت مضبوط کر لیا ہے۔ ارشمان کہنے لگا دل کے ساتھ ساتھ اعصاب کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ایسے کاموں کے لیے ہمت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا تو میرا شک ٹھیک تھا۔ انور کہنے لگا اس بار میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں تمہارا پورا پورا ساتھ دوں گا، چلو نا ارشمان، یہ موقع ہمیں بار بار نہیں ملے گا۔ ارشمان کہنے لگا تو اگر تو بیچ میں اٹھ کے بھاگا نا تو یاد رکھنا چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ بڑے دھیرے دھیرے دونوں باتیں کر رہے تھے۔ انور کہنے لگا نہیں پکا، میں کہیں نہیں بھاگوں گا، آخر تک تیرا ساتھ دوں گا۔ ان کی باتیں سن کے میرے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے۔ اس کا مطلب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انوالو تھے۔ اس کا مطلب سارا نے جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا۔ بہرحال ارشمان نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا، غصہ تو مجھے اس پہ بہت تھا۔ اس وقت میرے دل میں ایسا کوئی جذبہ نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی جیسا رشتہ نبھاؤں۔ میرے پاس یہ اچھا موقع تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں باہر نکلے، میں بھی اپنی گرم مردانہ شال خود پہ لپیٹ کے اپنا منہ چھپائے کمرے سے باہر نکلی۔ بڑے دھیرے دھیرے وہ لوگ سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ جب وہ پوری سیڑھیاں اتر چکے تو میں ان کے پیچھے گئی، اور میں تھی بھی ننگے پاؤں۔ ہال کا ٹھنڈا فرش تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میری موجودگی کا انہیں احساس ہو۔ اس وقت مجھے بڑی شدت سے اپنا موبائل یاد آیا۔ موبائل ہوتا تو ویڈیو بنا لیتی ان کی، لیکن بہرحال میں بھی شور مچا کے سب کو اکٹھا کر سکتی تھی۔ میں ان کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ وہ لوگ ڈپارٹمنٹ میں گئے، حالانکہ ڈپارٹمنٹ کا مین دروازہ لوہے کی گرل سے بند تھا۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ اندر کیسے جائیں گے، لیکن وہ لوگ ایک کلاس روم کی کھڑکی کھول کے اندر جانے لگے۔ اچھا، تو یہ لوگ کلاس روم میں یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر گئے انہوں نے کھڑکی بند کر دی۔ میں نے سوچا کہ مجھے دیکھنا چاہیے۔ میں نے جیسے ہی کھڑکی کھولنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ لوگ اندر سے کھڑکی لاک کر چکے تھے۔ میں نے کھڑکی پہ اپنا کان لگایا۔ اندر انور ارشمان سے کہہ رہا تھا یار جلدی کر، ابھی تک تجھ سے ڈوری ہی نہیں کھل رہی۔ رات کو وہ لوگ ٹراؤزر پہن کے سوتے تھے یا پھر اپنی شارٹس، شاید وہ اسی ڈوری کی بات کر رہا تھا۔ ارشمان کہنے لگا اوہو صبر نہیں ہے، اتنا ٹائٹ باندھا ہوا ہے، اتنی آسانی سے تھوڑی کھلے گا۔ وہ کہنے لگا ایسا کر توڑ دے، میرا دل بہت ڈر رہا ہے، جلدی جلدی کر جو کرنا ہے۔ ارشمان کہنے لگا بکواس بند کر اپنی، ایسے کام جلدی جلدی میں نہیں ہوتے، کچھ وقت لگتا ہے، اگر میں نے ڈوری توڑ دی تو شک پڑ سکتا ہے کسی کو۔ میں بڑے انہماک سے کان لگا کے سن رہی تھی، اور میرا رنگ اڑ کے رہ گیا تھا۔ تبھی مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کندھے پہ انگلی سے ٹک ٹک کیا ہے۔ میں اتنا سننے میں مگن تھی کہ میں نے توجہ ہی نہیں دی۔ اندر سے دور سے لائٹ کی روشنی بھی نظر آ رہی تھی۔ میں نے بے دھیانی میں وہ اپنے کندھے سے انگلی پیچھے کی، لیکن تبھی دماغ کی گھنٹی بجی، کیونکہ اس بار میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا تھا۔ میری جان نکلی تھی۔ جیسے ہی میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو سر ابدال تھے۔ میرا تو ایک رنگ آ کے گزرا۔ سر کہنے لگے یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے کہا سر وہ اندر۔ کہنے لگے اندر کیا؟ میں نے کہا سر ارشمان اور انور ہیں اندر۔ سر کہنے لگے وہ لوگ اندر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سر مجھے لگتا ہے کہ وہ دونوں۔ کہنے لگے کیا دونوں؟ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں آپس میں جوڑی۔ سر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی۔ میں نے کہا سر سمجھ جائے، سر آپ بھی کان لگا کے سن لیں۔ سر آگے بڑھے، کھڑکی پہ اپنا کان لگایا۔ میں بھی کھڑکی پہ کان لگا کے سننے لگی۔ ارشمان کہہ رہا تھا انور اپنی شرٹ کے بٹن کھول، دیکھ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ سننا تھا سر ابدال کا چہرہ سرخ ہوا۔ انہوں نے تو مکہ مار کے کھڑکی کا شیشہ ہی توڑ دیا۔ مجھے توقع نہیں تھی سر اتنے جذبات میں آ جائیں گے۔ چھناک سے شیشہ ٹوٹا۔ میں تو فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ سر نے دوسرا شیشہ بھی توڑ دیا۔ شور کی آواز سے گارڈ سیٹیاں مارتے ہوئے اس طرف آ گئے۔ دیکھا تو ارشمان ٹیسٹ پیپرز انور کی شرٹ کے اندر ڈال رہا تھا۔ سر کو اور مجھے دیکھ کے اس کی رنگت اڑ کے رہ گئی، اور انور وہ بھی بے حد گھبرا گیا۔
सर कहने लगे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे? तब तक गार्ड्स और चौकीदार भी आ गए, शोर मच गया। अरिशमान की नजर मुझ पे थी। मैं बुरी तरह घबरा गई। बहरहाल जो मैं सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। वो दोनों शायद अपने टेस्ट पेपर चोरी करने आए थे। गार्ड्स उसी खिड़की से अंदर गए। मैं जल्दी से वापस हॉस्टल के कमरे में आ गई। सब लोग सो रहे थे। बाहर से बोलने की आवाजें आ रही थीं। शायद प्रिंसिपल भी जाग गया था। कहने लगे तो ये नया तरीका पकड़ा है तुम लोगों ने। मैं चाहूँ ना तो तुम दोनों को डिसमिस कर दूं। सिर्फ तुम लोगों के माँ बाप का ख्याल आता है। अरिशमान कहने लगा सर आई एम सॉरी, आप प्लीज हमें माफ कर दें, हम दोबारा से पेपर देंगे, आप बस हमें 1 हफ्ते का वक्त दे दें। प्रिंसिपल कहने लगा नहीं, तुम लोगों को सजा तो मिलेगी। सर अब्दाल कहने लगे मुझे तो दाल में कुछ और ही काला लगता है, क्योंकि जो कुछ इनके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिली है वो निहायत ही नाजेबा किस्म की है। मैंने जरा पर्दा हटा कर देखा। दोनों को ग्राउंड में खड़ा किया हुआ था और अनवर तो बुरी तरह से कांप रहा था। अरिशमान कहने लगा सर क्या क्या मतलब, किस किस तरह की इंफॉर्मेशन? बाय गॉड हम लोग सिर्फ अपना पेपर गायब करने आए थे और कुछ भी नहीं। आप बेशक देख लें, आप पेपर के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तमाम पेपर्स को एक काली डोरी से बांधा गया था और वो शायद उसी डोरी को खोलने की बात कर रहा था और मैं पता नहीं क्या समझ बैठी थी। शायद अनवर इसीलिए घबरा रहा था क्योंकि उसके पेपर अच्छे नहीं हुए थे। उसे पेपर भी गायब करना था और जाने से भी डर रहा था। और अरिशमान चूंकि अपने ग्रुप का लीडर था इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर गया था। लेकिन जो बात मैंने कह दी थी तो तीर तो कमान से निकल चुका था, क्योंकि सर अब्दाल ने तो लिहाज ही नहीं किया। सर अब्दाल कहने लगे मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे में इन्वॉल्व है, क्योंकि मुझे दाऊद ने यही बताया है। मेरा नाम सर अब्दाल ने पता नहीं क्यों ले लिया। मेरी तो जान निकली। अरिशमान कहने लगा सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। प्रिंसिपल ने एक जोरदार थप्पड़ अरिशमान के मुंह पे मारा। दूसरा थप्पड़ अनवर के मुंह पे। अनवर कहने लगा सर खुदा की कसम हम लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते, हम सिर्फ अपना पेपर। अभी उसकी बात मुंह में थी जब दोनों के मुंह पे दोबारा से प्रिंसिपल ने थप्पड़ मारे। पेपर चोरी करने भी आए थे तो थी तो चोरी ना, और यकीनन कुछ तो तुम लोगों ने ऐसा किया होगा जो तुम्हारे रूममेट ने ये बात कही है। कुछ तो उसने करते हुए देखा होगा तुम्हें। अरिशमान कहने लगा सर उसका दिमाग खराब है, वो जानबूझ के किया है उसने ये सब कुछ। प्रिंसिपल कहने लगा अरिशमान तुमसे तो मैं वैसे ही बहुत तंग हूँ। तुम्हारे बाप से मेरे अच्छे ताल्लुकात ना होते तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। दिल चाह रहा है मैं अभी अरसलान को यहाँ बुलाऊं, बताऊं उसको कि उसके बेटे के करतूत क्या है। वो कहने लगा सर मैं कसम खा के कहता हूँ मैं इस किस्म का लड़का नहीं हूँ, और ना अनवर ऐसा है। वो दाऊद का बच्चा घटिया इंसान, गंदी सोच का मालिक है। मेरा दिल धक धक कर रहा था। प्रिंसिपल कहने लगा अपनी शर्ट उतारो, इस सर्दी में तुम लोग सामने स्विमिंग पूल में खड़े रहोगे, और वो भी हाथ ऊंचा करके। चलो जल्दी से अपने कपड़े उतारो। ये सुन के उन दोनों के होश उड़े। अरिशमान कहने लगा सर आई एम सॉरी सर प्लीज इतनी सर्दी है सर, हम बीमार पड़ जाएंगे, हम लोग बीमार हो जाएंगे, हमने कुछ नहीं किया, और मैं तो आ ही नहीं रहा था। मुझे पता था मैं पास हो जाऊंगा। ये अनवर का बच्चा मुझे साथ लेके आया था, ये कह रहा था कि ये फेल हो जाएगा। सर आप देख लें सर, आप इसी के पेपर्स निकाले हैं हमने, अपने तो नहीं निकाले मैंने। सर प्लीज सर कोई और सजा दे दें सर प्लीज। लेकिन प्रिंसिपल ने एक और थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। उतारो अपनी शर्ट और बुनियान भी उतारो। उन दोनों ने अपनी अपनी शर्ट उतारी, बुनियान भी उतार दी। प्रिंसिपल कहने लगा पैंट उतारो। दोनों ने हाथ जोड़े सर प्लीज पैंट मत उतरवाएं। हालांकि मैं अंधेरे में था, थोड़ा सा पर्दा हटा के ये मंजर देख रही थी, लेकिन पीछे से कमरे की लाइट एकदम जली। मैंने पलट के देखा तो रोहेल था। कहने लगा ओए क्या देख रहा है बाहर? मैंने जल्दी से खिड़की का लॉक बंद किया, लेकिन वो आ गया। पर्दा उसने पूरा हटा दिया। तब वो दोनों पैंट उतार रहे थे। अरिशमान की नजर मुझ पे पड़ी। मेरी जान निकली। जिस गुस्से और नफरत से वो मुझे देख रहा था, मुझे लग रहा था मुझे जान से मार डालेगा। मैं जल्दी से पीछे हट गई। रोहेल कहने लगा ओए ये दोनों ये बाहर क्या कर रहे हैं? रोहेल का वॉल्यूम सुन के खुर्रम और फहद भी उठ चुके थे। आंखें मसलते हुए खिड़की के पास खड़े हो गए। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी।
وہ کہنے لگے ابے یار یہ راتوں رات انہوں نے ایسا کیا کیا کہ پرنسپل نے ان کی پینٹیں تک اتروا دی. سامنے سوئمنگ پول میں دونوں کو کھڑا کر دیا گیا تھا. دونوں کے ہاتھ اوپر تھے. پرنسپل صاحب کہنے لگے کل کا پورا دن تم لوگ یہیں کھڑے رہو گے اور سب اسٹوڈنٹس تمہیں دیکھیں گے. مجھے نہیں پتا تھا اتنا بڑا تماشا لگ جائے گا. میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اب پتہ نہیں ارشمان میرا کیا حال کرے گا. یقیناً مجھے بخشے گا تو نہیں، کیونکہ سربدال تو چلا چلا کے کہہ رہے تھے تم لوگوں کو ایسا مزہ چکھائیں گے ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہوئے بھی تم لوگ گھبراؤ گے. کمبختو، یہ نیا کام شروع کیا تم لوگوں نے، شرمندہ کر کے رکھ دیا. اگر یہ بات ہمارے ہاسٹل سے باہر گئی تو پتہ ہے کتنی بدنامی ہو جائے گی. ارشمان کہنے لگا سر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور ہم ایسا کچھ نہیں کرتے، ہم ایسے لڑکے نہیں ہیں. شرارت اپنی جگہ ہے لیکن یہ بہت گھٹیا بات ہے. آپ مجھ پہ اس قسم کا الزام نہیں لگا سکتے. پہلی بار مجھے اس کی آواز میں نمی محسوس ہوئی. شاید میں غلط بول گئی تھی. پرنسپل صاحب کہنے لگے اس طرح کی بات کہہ کے میں نے اپنے ہاسٹل اور کالج کا نام بدنام نہیں کرنا، لیکن تم لوگوں کو سزا بہت کڑی دوں گا. فہد، روہیل اور خرم تینوں سوچ میں پڑ گئے. کہنے لگے ایسا کیا کیا ہے انہوں نے؟ پھر مجھ سے پوچھنے لگے. کہنے لگے تمہیں کچھ پتا ہے؟ میں تو ویسے ہی گھبرائی ہوئی تھی. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. پتہ نہیں کیوں میں اندر سے بے حد خوف زدہ تھی. وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا. پتہ نہیں میں نے یہ کیوں کہہ دیا. جو کچھ بھی تھا اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میں کون ہوں تو وہ یقیناً مجھے طلاق دے دیتا. طلاق دینا تو دور کی بات ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرتا. میرے دل کی دھڑکنیں کسی تیز رفتار گھوڑے کی مانند دوڑ رہی تھی. مجھے اپنی شامت سامنے نظر آ رہی تھی. یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ دونوں ہمارے بغیر باہر کرنے کیا گئے تھے. روہیل کہنے لگا ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں. پرنسپل نے اتنی سخت پنش تو آج تک ہمیں نہیں دی. اس کا مطلب ان دونوں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. خرم کہنے لگا یار ہمارے بغیر تو آج تک انہوں نے کچھ نہیں کیا، پھر یہ اکیلے کرنے کیا گئے تھے. وہ تینوں سوچ میں پڑ گئے. میں اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی. پتہ نہیں کیوں مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا. میں بے حد پریشان تھی. خرم اور ارشمان کے دوسرے دوست سبھی ایک دوسرے سے وجہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے. باقی کی رات ہماری جاگ کر گزری. ہم کلاس روم جانے کے لیے جانے لگے تو ہمیں اسی پول کے راستے سے گزر کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جانا تھا اور وہ دونوں بے حال ہو چکے تھے. ٹھنڈے یخ پانی میں کھڑے کھڑے ان کی برداشت شاید ختم ہو چکی تھی اور پھر سب اسٹوڈنٹس ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ان پہ ہنس رہے تھے. جیسے ہی میں وہاں سے گزری ارشمان نے مجھے یوں دیکھا جیسے جان سے مار دے گا. میں نے نظریں چرائیں اور تیز قدموں سے اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلی گئی. البتہ خرم، روہیل اور فہد ان کے پاس کھڑے وجہ پوچھ رہے تھے. جیسے میری کلاس ختم ہوئی اور میں واپس ہاسٹل جانے لگی تو تب تک شاید ان کی سزا ختم ہو چکی تھی. حیرت کی بات یہ تھی کہ فہد، روہیل اور خرم نے اس دن ساری کلاسز چھوڑی تھیں. جیسے ہی میں کمرے میں گئی روہیل نے میرا بازو پکڑ کے مجھے اندر کھینچا اور وہ بھی بڑے زور سے. میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور زمین پہ گر گئی. دروازہ اسی نے بند کیا. پانچوں بڑے غصے سے کھڑے ہوئے تھے. سب سے زیادہ غصہ ارشمان کو تھا. انور بھی ہمارے ہی کمرے میں موجود تھا. موٹی رضائی میں اپنے آپ کو لپیٹا ہوا تھا. البتہ ارشمان نے کپڑے پہن لیے تھے لیکن جہاں میں گری تھی وہ وہاں ہی کھڑا ہوا تھا. میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی کی ہے تم نے؟ میں نے ارشمان کو نظر انداز کر کے روہیل سے کہا. کہنے لگا کیا حرکت کی ہے تم نے؟ تمہیں احساس ہے تم نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے روہیل مجھ پہ چلایا. ارشمان کہنے لگا تم چپ رہو، تم میں سے کوئی کچھ نہیں بولے گا. پھر مجھ سے کہنے لگا چل کھڑا ہو. میں کھڑی ہو گئی. میں یہی سوچ رہی تھی کہ ارشمان سے معذرت کر لوں گی کیونکہ میں نے غلطی کی تھی. میں نے کہا ارشمان وہ کہنے لگا بکواس بند کرو اپنی. پانچوں کے پانچوں ہی بڑے غصے میں تھے. میری بات سنو سمجھے، اور وہ بھی کان کھول کے. میں چپ ہو گئی. کہنے لگا ایسا کیا کرتا دیکھا تھا تم نے مجھے انور کے ساتھ؟ بتاؤ مجھے کیوں تم نے آگ لگائی ہے؟
अपना बदला लेने के लिए? दाऊद, अपना बदला लेने के लिए जो कुछ तुमने सर अब्दाल से कहा है ना, तुम्हें अंदाजा है तुमने मेरे करेक्टर को कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया? समझ क्या रखा है तुमने मुझे? मैं एक करेक्टरलेस लड़का हूँ। अरिशमान, वो अभी बात मेरे मुंह में ही थी जब वो धाड़ते हुए कहने लगा, एकदम चुप। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। उसकी आंखों में तो जैसे खून उतरा हुआ था। कहने लगा, पता भी है तुम्हें हम जिनस मिलन क्या होता है? तुमने बहुत घटिया इल्जाम लगाया है मुझ पे। तुमने प्रिंसिपल की नजर में, सर अब्दाल की नजर में मुझे मशकूक कर दिया। वो बेहद संजीदा था। मैं नजरें चुराने लगी। कहने लगा, अभी तक तो मैंने ऐसा कभी किसी के साथ नहीं किया, लेकिन तुम्हारे साथ अब मैं करूंगा। ये सुन के मेरे होश उड़ के रह गए। कहने लगा, बस मौका मिलने दो मुझे। तुम्हें मैं इस लफ्ज का मतलब अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि दोबारा तुम जुबान खोलने से पहले 100 बार सोचोगे। उसकी बात ने मेरे होश उड़ा के रख दिए। वो कमरे से बाहर चला गया। बाकी के चारों मेरे गिर्द खड़े हो गए। अनवर भी रजाई से बाहर आ गया। कहने लगे, ये मत समझना कि तुम अरिशमान के साथ गेम खेलोगे और हम उसका साथ नहीं देंगे। हम सब एक जुबान हैं। आज तक कोई हमें नहीं तोड़ पाया। और दाऊद साहब, तुम क्या चीज हो? हम हर हाल में अरिशमान के साथ हैं। तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। चलो लड़कों, रोहेल ने बाकी लड़कों से कहा और सबके सब बाहर चले गए। मैं अपना सर पकड़े बैठी थी। जो धमकी वो मुझे देकर गया था वो छोटी मोटी धमकी नहीं थी। शायद मैंने जो कह दिया था वो भी छोटा नहीं था, लेकिन मैं उससे माफी मांगना चाह रही थी। लेकिन शायद वो इस काबिल नहीं था कि उससे माफी मांगी जाए। उसे पता नहीं था कि उसने मेरे साथ क्या किया था। मुझे भी तो कुत्ते काट सकते थे। मैंने भी तो 2-3 घंटे सजा भुगती थी। अपनी बारी आई तो कितनी आग लग रही है उसे। मैं सोच रही थी कि अपना कमरा ही चेंज करवा लूं। उन पांचों का क्या भरोसा, रात को कमरे में आके मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा ना करने लगे। और अगर उन्होंने ऐसा कुछ करना चाहा तो मेरा राज भी तो फाश हो जाएगा। पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं जल्दी से बाहर निकली और सीधा ऑफिस में चली गई। मैंने कहा, सर मैं हाफ डे की छुट्टी चाहती हूँ। सर कहने लगे, क्यों? मैंने कहा, सर वो एक्चुअली मेरी कजन्स यहाँ बराबर में ही गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हैं और यहाँ यूनिवर्सिटी में भी कुछ कजन्स हैं। उन्होंने मुझे खाने की दावत दी है। सर प्लीज, मैंने अभी तक एक भी छुट्टी नहीं ली है। प्रिंसिपल सर कहने लगे, ठीक है, पहले मैं तुम्हारी वालिदा से बात करूंगा। अगर वो इस बात की हामी भरती हैं तो फिर मैं तुम्हें हाफ डे की छुट्टी दे देता हूँ। मैं जानती थी कि मेरी वालिदा सारा है और नंबर भी उसी का ही था। प्रिंसिपल ने सारा का नंबर मिलाया। उसने भी कमाल अदाकारी की कि हाँ हाँ आप भेज दें। बहरहाल प्रिंसिपल साहब ने मुझे हाफ डे की छुट्टी दे दी। मैं सीधा गर्ल्स हॉस्टल गई। शायद सारा पहले से बात कर चुकी थी और छुट्टी भी ले चुकी थी। जब मैं वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी तो वो चारों वहीं आ गई। सामने सारा को देख के मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगी, रिदा क्या हुआ तुम्हें? मीटिंग एरिया में और कोई नहीं था। मैंने कहा, तुम्हें नहीं पता, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई। सारा कहने लगी, अच्छा फिलहाल यहाँ पे तमाशा मत करो, उठो बाहर चलते हैं, कहीं चल के बात करते हैं। वो मुझे बाहर ले गई। हम लोग पब्लिक प्लेस में कैफेटेरिया में बैठ के तो ये बातें नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने एक पुरसकून जगह का इंतखाब किया। वहां पे हम सब बैठ गई। शिजा कहने लगी, अब बताओ क्या हुआ है? मेरे चेहरे पे एक मास्क लगा हुआ था जिससे लगता था जैसे मेरी बड़ी बड़ी सी शेव है। इस वजह से मुझे कोई पहचान नहीं सकता था और वो इतनी मजबूती से चिपकी हुई थी कि मुंह धोने से भी वो मास्क नहीं उतरता था। मैंने कहा, सारा तुमने कहा था ना कि अरिशमान का इंटरेस्ट लड़कों में है। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। वो रात को अनवर उसके पास आया। उन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि मुझे लगा शायद ये दोनों आपस में कुछ करना चाहते हैं, तो मैंने उनका पीछा किया। सारा कहने लगी, फिर क्या हुआ? चारों मेरी सहेलियां आंखें फाड़ के मुझे देख रही थी। उन्हें लगा कि शायद सारा का सच ठीक निकला। मैंने कहा, वो तो पेपर चोरी कर रहे थे और मैं समझी कि शायद वो एक दूसरे के साथ। मैंने सर को बता दिया। सर ने उन्हें सजा दी और साथ में मेरा नाम ले लिया कि दाऊद ने तुम दोनों को ऐसा करते देखा है। सारा, अरिशमान ने मुझे बहुत बड़ी धमकी दी है, बहुत बड़ी धमकी।
सारा कहने लगी क्या धमकी दी है उसने तुम्हें? मैंने कहा वो कह रहा है तुमने जिस चीज का इल्जाम लगाया है मैं वो तुम्हारे साथ करके दिखाऊंगा। ये कह के मैं रोने लगी। सारा कहने लगी बस इतनी सी बात? मैंने सारा को हैरत से देखा, अपने आंसू साफ किए। मैंने कहा ये इतनी सी बात है सारा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? वो कहने लगी देखो, जो शक तुम्हें था वो खत्म हो गया। अगर वो ऐसी कोई हरकत करेगा तो तुम कौन सा लड़का हो? मैंने कहा लड़का नहीं हूं तो क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? वो कहने लगी तो तुम्हारा शौहर ही है ना, कोई बात नहीं, अच्छा है, राज फाश हो जाएगा। सारा की बात पे मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है? अगर वो मेरे साथ ऐसा कुछ करेगा और उसे पता चल गया कि मैं कौन हूं, तो तुम्हें क्या लगता है वो मुझे बड़ी इज्जत से अपनी बीवी बना के रखेगा? जितना वो गुस्से में था ना, ये मैं जानती हूँ। गुस्से के मारे उसकी आंखें खून ख्वार शेर की तरह लग रही थी। लग रहा था मुझे कच्चा चबा जाएगा। सारा मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी कॉलेज वापस। वो पांचों लड़के मेरे खून के प्यासे हुए फिर रहे हैं और मैं उनके कमरे में भी नहीं रहूंगी। बस हो गया सारा खेल तमाशा खत्म, मुझे नहीं जाना वापस। सारा कहने लगी अच्छा तुम चुप तो करो, रो क्यों रही हो? मैंने उसके कंधे पे सर रखा, वो मेरा सर सहलाने लगी, मेरा माथा चूमने लगी। मेरे हाथ पांव बर्फ की मानंद ठंडे हो रहे थे। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा थी। शिजा ने मेरा हाथ पकड़ा। जब देखा कि मेरा हाथ इतना सर्द है तो अपने दोनों हाथों में ले लिया। मेरा हाथ सहलाने लगी, कहने लगी क्यों इतना डर रही हो? देखो अपनी हालत, देखो रंग कैसे उड़ गया, हाथ देखो कितने ठंडे हो गए। मैंने कहा मेरी आधी से ज्यादा जान निकल गई है, तो तुम लोग कह रही हो हाथ क्यों ठंडे हो गए, डर क्यों रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है अरिशमान से। मैं सारा के कंधे पे सर रख के उसके साथ लगी हुई थी। सारा की बहुत अच्छी दोस्ती थी, हम स्कूल लाइफ से साथ थे। बाकी चीजें वगैरह तो हमें कॉलेज में ही मिली थी। फिर हमारी फैमिली में आना जाना बहुत था। कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी कोई बात सारा से छुपी हो या सारा की कोई बात मुझसे छुपी हो। वो मेरे आंसू साफ कर रही थी। अपना हाथ फैलाकर उसने मुझे अपने साथ लगा रखा था, क्योंकि मैं थर थर कांप रही थी। शिजा भी मेरे पास ही बैठी हुई थी। फरी और नगीन भी मुझसे हमदर्दी जताने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरी नजर सामने पड़ी। दूर मुझे 4 लड़के नजर आए। मैंने परस में से अपनी नजर का चश्मा लगाया तो मेरे होश उड़ के रह गए। मैं जल्दी से सारा से पीछे हटी। कहने लगी क्या हुआ? मैंने कहा मर गए सारा, वो देखो वो सब कमीने वहां खड़े हुए हैं। मुझे लग रहा है ये मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। अब ये फिर कहेंगे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बड़ी अच्छी है, तुम्हें सीने से लगा के रखती हैं, बेशरम हो तुम, तुम्हारी तो मौजें लग जाती हैं। कहने लगी बकवास करते हैं तो करने दो, हमें तो पता है ना कि हम क्या हैं। शिजा ने चुटकी बजाई, कहने लगी सारा एक आइडिया है मेरे पास। वो कहने लगी वो क्या? मैं भी सीधी होके बैठ गई। वो चारों के चारों सामने ही खड़े हुए थे। उनमें अरिशमान नहीं था, बाकी सारे थे। मुझे ये नहीं पता कि वो मुझे देख चुके थे या नहीं। शिजा कहने लगी देखो, अगर हम उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाए तो इनकी बॉन्डिंग टूट जाएगी। ये जो अरिशमान है ना, मुझे लगता है ये अपने दोस्तों के सर पे बड़ा अकड़ता है। जब ये अकेला रह जाएगा ना तो इसका सारा भरम मट्टी में मिल जाएगा। मैंने कहा वाह शिजा, ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया? तुमने तो मेरा सारा मसला हल कर दिया। तुम ठीक कह रही हो, ये अरिशमान का बच्चा ना अपने दोस्तों की वजह से बड़ा फूं फां करता है। कहता है हमारी बॉन्डिंग है, हम एक जुबान है। अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो मैं इसकी ऐसी की तैसी फेर के रख दूंगी। शिजा कहने लगी हाँ ये ठीक है। सारा कहने लगी देखो मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा तुम्हारी खातिर मैंने अपने लंबे बाल कटवा लिए, अपने अच्छे खासे शरीफ शुरफा किस्म के शौहर पे शक किया और सबूत के तौर पे उसके कैडेट कॉलेज पहुंच गई। और एक तुम हो मेरा साथ देने को तैयार नहीं हो। हटो पीछे, तुम्हारी सारी मोहब्बत दिखावे की है, सारी कुर्बानियां तो मैंने दी। कितने हसीन बाल थे मेरे, तुम सबके बाल देख के पता है मेरा दिल कितना जलता है। नगीन कहने लगी देखो सारा, इस वक्त रिदा को हमारी जरूरत है। सारा कहने लगी नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरह ये हमारे साथ लिपटती है, हमारे साथ लग जाती है, देखो ये समझ में आता है, लेकिन वो कमीने लड़के ये सब कुछ करते हुए हमें देख चुके हैं। नगीन होश के नाखून लो,
ये तो चलो लड़की है, देखने में लड़का लगती है, सचमुच का तो लड़का नहीं है ना। वो हमसे बहुत ज्यादा फ्री होने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि जब तुम लोग दाऊद के सीने से लग सकते हो, वो तुम्हें पपियां कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये सुन के नगीन कहने लगी, हाँ ये तो हमने नहीं सोचा था, इसमें तो इज्जत का बड़ा खतरा है। कहने लगी, तो और नहीं तो क्या, लड़के बड़े ओवर किस्म के होते हैं, ये तो 1 मिनट से पहले अपनी सारी हदें पार करेंगे। ना बाबा ना, मैं ये काम नहीं करूंगी। मैंने कहा, मुझे मुसीबत में फंसा के अब तुम लोग अपने बारे में सोच रहे हो। सोचो अगर उन 5 लड़कों ने मिल के मुझे लड़का समझ के मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करना चाहा, तो मेरा क्या होगा। मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। जरूरी थोड़ी है कि अरिशमान मुझे अकेले कमरे में लेके जाएगा, उसके सारे दोस्त एक जुबान है। यहाँ तुम लोगों को अपनी पड़ी हुई है, तुम लोगों की इज्जत इज्जत, मेरी इज्जत कुछ नहीं। सारा कहने लगी, यार तुम चुप तो करो, सोचने दो। मैंने कहा, हाँ सोचो, और तुम्हें सोचना पड़ेगा, क्योंकि सारा तुम्हारा बनाया हुआ खेल था ये। तुमने मेरे दिमाग में ऐसी गंदी बातें डाली थी। अच्छा खासा मेरा शौहर था, सिर्फ लड़कों के साथ मस्तियां करता था, ऐसा वैसा नहीं था, लेकिन तुमने मेरे दिमाग में डाल दिया। मैंने सर को बताया और फिर ये सारी गड़बड़ हो गई। सारा कसूर तुम्हारा है। सारा कहने लगी, वाह शाबाश। उसने तालियां बजाई और जैसे मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी माँ बन के गई, तुम्हारा दाखिला करवाया, अपने चचा से कह के तुम्हारे सारे झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवाए, प्रिंसिपल से सिफारिश करवाई, और तुम कह रही हो मैंने कुछ नहीं किया। नगीन कहने लगी, खुदा के लिए तुम दोनों तो लड़ना छोड़ो। जान हमारी उस वक्त निकली जब वो चारों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हमारे पास आ रहे थे।